सर सबसे इम्पोर्टेंट पेन पॉइंट जो होता है अभी के लाइफ में वो हमारा डेली लाइफ का मैनेजमेंट होता है बस। मतलब मुझे लगता है जो मैनेजमेंट हमारी लाइफ पे अगर हमने कर लिया तो फिर पढ़ाई बहुत इजी हो जाती है। अगर मतलब बहुत ही ट्रिवियल है, बहुत बेसिक्स है, पर अगर हम टाइम से सो गए और टाइम से उठ गए तो वो बहुत ही बेनिफिशियल है। मतलब लगता है कि थोड़ी देर जग जाते हैं, पर वो सर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पढ़ाई के अलावा अगर एक बार आप 10-11 बजे सो गए, सुबह आपने उठा, यू आर वेरी फ्रेश, आप दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं। Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania, and I'm your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2, Commerce and Management. Today, I have a very special guest straight away coming from Prayagraj. That is Mr. Ambuj Yadav, and he has recently qualified his GRF in Management. So today, we are going to have an interaction with him, and I'm very sure, considering his background, his commitment towards where he wants to reach, it's going to be a huge journey, and it's going to be very inspirational for all of you who are going to listen to it. So first of all, thank you so much, Ambuj, for taking out time out of your busy schedule and interacting with us and letting us know your success journey. In fact, peeping us in your insightful and successful journey. So congratulations and welcome to the channel. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Ambuj, I want you to be very expressive in terms of explaining what all you have done in terms of your background, educational qualification and experience, so that our students can know that what is your background. Sir. Sir, I have done my schooling from Kendriya Vidyalaya Manori from Prayagraj itself, and after 12th, I did my BTech in mechanical engineering. So I am a mechanical engineer, and after my engineering, I did my MBA in marketing management from University of Allahabad, and I got placed in a financial company, ICICI Prudential, from my MBA itself, and I worked there for like 8 or 9 months, and after that, I quit my job for preparing for these exams. And apart from this, sir. I was the topper of my university at both the levels, like at the graduation as well as the post graduation, and therefore I have been. Oh, thank you, sir. And therefore I have been awarded with 3 gold medals, one vice chancellor gold medal for my BTech, and 2 other gold medals for my MBA. First of all, please accept my heartiest congratulations for being so dedicated and having an impeccable journey. Thank you so much, sir. But at the same time, I'm very curious, how does a BTech guy stumbles upon into MBA? Because मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जब बीटेक वाले एमबीए की तरफ जाते हैं, so they are more into getting into corporate. How did you stumble upon teaching as a career and how did you give NET? उसके बारे में कुछ बताइए, उसके बारे में कुछ स्टोरी बताइए. सर मतलब बेसिकली पढ़ने का मजा आता था हमेशा से. आई वाज गुड एट स्टडीज, तो पढ़ने का थोड़ा अच्छा लगता था. एंड एक्चुअली आई डिड माय एमबीए फॉर कॉर्पोरेट ओनली. ओके. जब मैं कॉर्पोरेट में गया और देखा मैंने, तो फिर मुझे लगा कि बेटर गो फॉर टीचिंग. और फिर मतलब मुझे भी लगा कि मतलब मेरे पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, पढ़ने में ठीक हूँ, तो व्हाई नॉट गो फॉर दिस, क्योंकि कॉर्पोरेट तो फिर मैं बाद में भी कर सकता था. तो एमबीए इसके बाद इसलिए मैंने कॉर्पोरेट किया, और फिर आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर वेरियस कोर्सेज कि मुझे कुछ ऐसा मिले, क्योंकि मतलब पढ़ने का मन तो करता है, पर सिर्फ बुक्स पढ़ना थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है. तो मैं थोड़ा वीडियो लेक्चर्स और इस पर थोड़ा सा डिपेंड करता हूँ. तो फिर मैंने कोई एक फुल लेंथ का कोर्स मैंने देखा, और मैंने आपका कोर्स लास्ट ईयर ही देखा था. और फिर देन आई एनरोल्ड अराउंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, और उसके बाद मैंने फिर कंसिस्टेंटली पढ़ाई की, सारे वीडियो लेक्चर देखे, प्रॉपर नोट बनाए, 2-3 बार वीडियोस देखे, तो उसके बाद फिर ये हुआ. फैंटास्टिक. तो सबसे पहले तो मैं अंबुज की तरफ से लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो आपका परसेप्शन है, मिथ है कि बीटेक वाले जो हैं वो अपने कॉर्पोरेट लाइन में चले जाते हैं, तो पहली बात तो अंबुज ने वो चीज क्लैरिफाई कर दी आपको कि भाई उन्होंने कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लिया, ही डिडंट लाइक इट, और प्रोबब्ली ही थॉट कि भाई वहां तो बाद में भी जाया जा सकता है. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बीटेक करके एमबीए में आके अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते. अंबुज मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपके थ्रू, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे जो कॉल करते हैं वो कहते हैं सर हमारा बीटेक का बैकग्राउंड है, क्या हम एमबीए अच्छे से कर पाएंगे, या एमबीए कर भी पाएंगे तो क्या हम नेट क्वालिफाई कर पाएंगे. सो आई थिंक अंबुज इज अ वंडरफुल एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू. ही हैज बीन अ टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट एट बोथ हिज अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल. तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है सर. अंबुज, अब एक सवाल मेरा ये है कि what has been your strategy specifically? I understand that you have enrolled for the course, आपने कोर्स में enroll कर रखा था for paper 1 and paper 2, but आपकी strategy क्या थी? How have you been preparing? किस तरह prepare कर रहे थे? सर स्ट्रैटेजी सबसे पहले तो मैंने प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस देखे कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कौन सा पोर्शन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और सबसे ज्यादा सिलेबस कहाँ से है, कौन से डिफिकल्ट पोर्शंस हैं. मेरे लिए बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर थोड़ा अकाउंटेंसी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में थोड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए वो. तो स्ट्रैटेजी यही था कि जो मेरे ऐसे सब्जेक्ट्स जो मेरे कोर नहीं है, जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, मैं उनको बेस से पढ़ना स्टार्ट करूं.
तो मैंने स्टार्टिंग के कुछ दिन अपने बेसिक्स को दिए। मैंने यूट्यूब से कुछ वीडियोस देखे, कुछ एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी 11th-12th की अकाउंटेंसी की, तो थोड़ा बेसिक्स मिला मुझे। और सर इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो था मेरे लिए स्ट्रेटजी में, वो ये था सर कंसिस्टेंसी। मतलब अगर मैं वीडियोस देखता था तो मुझे था कि अगर मैं 3 वीडियोस देखनी है मुझे या 4 वीडियोस देखनी है तो वो देखनी ही है एट एनी कॉस्ट, एट एनी हाउ। और अगर 4 घंटे पढ़ना है तो 4 घंटे पढ़ना है हर दिन, संडे सैटरडे डजंट मैटर, राइट। कंसिस्टेंसी बस, ज्यादा पढ़ाई नहीं, ऐसे बहुत हेक्टिक लेके नहीं, नॉर्मली 3-4 घंटे पर पूरे फुल एफर्ट्स के साथ। और वीडियोस देखिए, इतने वीडियोस देखने हैं तो देखने हैं, मतलब वो कभी भी कंप्लीट करने हैं। तो ये आई थिंक सबसे अच्छी चीज क्या है, कंसिस्टेंसी तो इंपॉर्टेंट है, जो अंबुज ने कह दिया है। मुझे सबसे अच्छी बात क्या लग रही है अंबुज की, जो मैं बार बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, कि क्या होता है हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो हमें शर्म आती है कि यार मैं क्लास 11-12 की वीडियोस, 11-12 की बुक्स क्यों उठा रहा हूँ। मुझे याद है बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे बात करते हैं जो बीटेक बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, उनका थोड़ा सा मैथ्स और क्वांट थोड़ा सा डिफिकल्ट एरिया होता है उनको। तो मैं उनको कहता हूँ कि यार सिंपल स्टेप क्या है, दैट यू गो बैक टू योर बुक्स ऑफ 6th 7th 8th। 6th 7th 8th में जिस तरीके से हमने डेसिमल्स, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, फ्रैक्शंस, रेशियो, प्रोपोर्शन ये पढ़े हुए हैं, इतने अच्छे से कितने भी बेसिक्स आप कर लें, इतने अच्छे से नहीं आ सकते, बिकॉज उस टाइम पे हम छोटे होते हैं, हमारा माइंड थोड़ा सा नैरो होता है। तो उस टाइम पे बहुत बेसिक टर्म्स में, बिल्कुल लेमैन्स टर्म्स में वो चीजें बुक्स में समराइज करी होती। तो अगर हमें नहीं समझ में आ रहा, कोई फायदा नहीं है 500,000 क्वेश्चन लगाने का, जस्ट गो टू द बेसिक्स एंड दैट इज गोइंग टू पे यू ऑफ। एंड आई थिंक अंबुज देखिए कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं थे, आई कैन अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इनको चैलेंजेस आए होंगे, बट इन्होंने वही किया, ही वेंट टू 11th and 12th और वहां से इन्होंने पढ़ाई करी है, नाउ ही हैव क्वालिफाइड। बहुत इजी हो गया सर 11th-12th की बुक्स पढ़ने के बाद। इट वाज वेरी वेरी इजी, मतलब एक मतलब बहुत ही इजीली समझ में आने लगा चीजें कि अच्छा ये होता क्या है। और फिर उसके बाद जब एक बार बेस बन गया तो फिर इट वाज वेरी वेरी इजी। फैंटास्टिक। अब मुझे एक और क्वेश्चन है मेरा, एक और सवाल है मेरा, कि स्टूडेंट्स को क्या है कि टाइम मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम होती है, और उसके साथ साथ और भी कुछ उनके पेन पॉइंट्स होते हैं, चाहे वो पेपर 1 में हो या पेपर 2 में हो। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि पेन पॉइंट होना, सबकी कुछ ना कुछ कमजोरी रहेगी। अभी मैंने कुछ दिन पहले अपनी वीडियो बनाई थी, अपनी स्ट्रैटेजी बताई थी मैंने कि हाउ डिड आई स्कोर्ड एंड क्वालिफाइड ऑल इंडिया रैंक इन 3 सब्जेक्ट्स। तो मैंने उसमें ये भी बताया था कि भाई मैं किस तरह तैयारी कर रहा था। सो इंपॉर्टेंट इज हाउ डू यू टैकल इट। So what were your pain points? That was one, apart from financial accounting and those part, and how have you tackled? सर सबसे इम्पोर्टेंट पेन पॉइंट जो होता है अभी के लाइफ में, वो हमारा डेली लाइफ का मैनेजमेंट होता है बस। मतलब मुझे लगता है जो मैनेजमेंट हमारी लाइफ पे अगर हमने कर लिया तो फिर पढ़ाई बहुत इजी हो जाती है। अगर मतलब बहुत ही ट्रिवियल है, बहुत बेसिक्स है, पर अगर हम टाइम से सो गए और टाइम से उठ गए तो वो बहुत ही बेनिफिशियल है। मतलब लगता है कि थोड़ी देर जग जाते हैं, पर वो सर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पढ़ाई के अलावा अगर एक बार आप 10-11 बजे सो गए, सुबह आपने उठा, यू आर वेरी फ्रेश, आप दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए वही था। मतलब मैं भी बहुत देर तक जगता था, रात को 1 बजे 2 बजे। फिर जब मुझे लगा कि नहीं, अगर मुझे पढ़ना है तो टाइम से सोया, टाइम से उठा, और फिर बहुत माइंड फ्रेश रहता है सर। और उसके बाद चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आती हैं। और जो पेन पॉइंट मेरे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही था कि लाइफ में एक बैलेंस लाना। एक बार ये बैलेंस आ गया तो हर चीज में बैलेंस आता है। क्योंकि अगर जब मैंने टाइम सेट कर लिया कि मुझे 10 बजे 11 बजे सोना है, उसके बाद मैंने सेट कर लिया कि मुझे 4 वीडियोस देखने हैं, मुझे 3 घंटे पढ़ने हैं, तो बस मैंने वो टाइम सेट किए। और सर पेन पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने कहा कि पुरानी बुक्स उठाना, कि बचपन की बुक्स उठाने में बहुत पेन लगता है, बहुत अजीब लगता है, पर अगर एक बार वो पढ़ लिया, वो अगर थ्रेशहोल्ड क्रॉस कर लिया आपने, तो फिर सारी चीजें बहुत इजी हो जाती हैं। एक बार वो पेन पॉइंट अगर आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया, टाइम मैनेजमेंट कर लिया, अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन कर लिया, बस उसके बाद एवरीथिंग इज वेरी इजी। आई थिंक बहुत ब्यूटीफुली आपने सम अप किया अंबुज, बिकॉज लाइफ में डिसिप्लिन ही लाना तो सबसे बड़ा चैलेंज पार्ट है। अगर डिसिप्लिन आ गया तो बाकी चीजें तो हो ही जाएंगी बहुत आराम से। वंडरफुल। अंबुज, अब मेरा एक नेक्स्ट सवाल है कि काफी बार स्टूडेंट्स मुझे कॉल करते हैं, और स्पेशली क्या है कि मुझे ऑनेस्टली ये बोलना पड़ेगा कि कई बार क्या है, सीनियर्स मिसगाइड बहुत करते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि 2015-16 में अगर मैं थोड़े बैकग्राउंड में जाऊं, तो उस समय क्या होता था कि पास्ट ईयर पेपर्स रिपीट हो जाते थे। तो अभी क्या एक परसेप्शन है स्टूडेंट्स का कि सर हमारे सीनियर्स तो बता रहे थे कि पास्ट ईयर लगा के चले जाओ, जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा, या फिर बिना मॉक टेस्ट लगाए चले जाओ, क्वालिफाई हो ही जाएगा एग्जाम। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, बिकॉज अब आपने क्वालिफाई कर लिया है। सो इन योर व्यू व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पास्ट ईयर एज वेल एज मॉक टेस्ट? सर पास्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट। अगर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका नॉलेज किस लेवल पे जा रहा है, आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में है, आपको बहुत आराम से पता चलता है। और सर पास्ट ईयर के पेपर्स में सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने बहुत सारे पेपर लगा दिए तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको पेपर में मिलते हैं, उस टाइम पे मॉक टेस्ट में आपको क्वेश्चन पेपर में मिल रहे होते हैं।
आपने उसको पढ़ा नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन आया, मैंने देखा ये तो मुझे नहीं आता है, मैं जल्दी से उसको गूगल पे सर्च किया या फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च कर लिया, तो मेरा वो कॉन्सेप्ट, मेरा वो बेस क्लियर हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस में, सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता चलता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और ऑलमोस्ट 20-30% तो आपका जो बेसिक्स है वहां से क्लियर हो जाता है, क्योंकि आप क्वेश्चन देखते हो, आपको समझ में नहीं आता, आप फिर यूट्यूब पे जाते हो, आप गूगल पे जाते हो, आप अपने कोर्स में जाते हो, अपने बुक्स उठाते हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। और मॉक टेस्ट सर, तो मॉक टेस्ट तो मतलब जितने लगाओ उतने कम है, जब लगाओ। मैं तो मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में मैंने, अभी जब आपका कोर्स मैंने लिया, पढ़ने से पहले मैंने 1-2 मॉक टेस्ट लगा लिए कि एटलीस्ट मुझे पता चले कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। आई थिंक बिल्कुल सही कह रहे हैं अंबुज की, पास्ट ईयर से जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है कि एटलीस्ट आपको पता चल रहा होता है। जैसे हर बार मुझसे भी स्टूडेंट यही पूछते हैं कि सर इतना सिलेबस पढ़ लें काम हो जाएगा। भाई कैसे काम हो जाएगा? मैं उनको यही बोलता हूँ, बिकॉज द आइडिया इज कि हर साल एनटीए 10% 15% क्वेश्चन नए डाल रहा है, ठीक है, एंड दे आर कमिंग अप इन टर्म्स ऑफ गिविंग मोर प्रैक्टिकल अप्रोच। स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन हम कभी प्रैक्टिकल एंगल से सोचते ही नहीं है, कि जो बस रटे रटाए क्वेश्चन है बस वही लगा के चले जाते। अंटिल यू आर थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स, जैसे मैं अपने लाइव सेशन अगर अंबुज आप अटेंड करते थे तो आपको पता होगा उसमें एक टर्म है बाउंसर्स, जिसका मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो वो कई बार स्टूडेंट्स को लगते हैं कि सर ये तो सिलेबस में है नहीं, आपने कहाँ से दे दिया। फिर वही टॉपिक एग्जाम में जब आता है तो स्टूडेंट्स को लगता है हाँ ये सर ने कराया था इसलिए हमने कर दिया। तो आई थिंक पास्ट ईयर्स लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए और क्वेश्चंस लगाइए। द आइडिया हैज टू बी ग्रास्पिंग ऑफ कंसेप्ट्स। कंसेप्ट्स ग्रैप्स हो जाएंगे तो कहीं से भी क्वेश्चन आए आप सही कर लेंगे, दैट डजंट मैटर। अंबुज बाकी बहुत सारी बातें हो गई, नाउ इट्स इंपॉर्टेंट टू डेल्व इनटू योर लाइफ आल्सो। सो अब क्योंकि आपने जेआरएफ मैनेजमेंट में क्वालिफाई कर लिया, यू हैव अ लॉट ऑफ वाइडर अपॉर्चुनिटीज ओपन, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू अहेड नाउ? सर अभी तो फिलहाल आई हैव गिवन माय आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग, तो आई एम वेरी होपफुल कि मैं उसको क्लियर कर लूं, एंड आफ्टर क्लियरिंग दैट आई विल जॉइन अ बैंक। और फिर मतलब मैंने देखा कि जो आईएम्स में होते हैं जहाँ पे हम पीएचडी करने जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास एक बहुत ही लंबा उनके पास एक एक्सपीरियंस होता है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होता है, एंड दे एक्चुअली प्रेफर पीपल विद वर्क एक्सपीरियंस, विद कॉर्पोरेट रियल लाइफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। तो मैं चाहता हूँ कि आई विल जस्ट गो वर्क फॉर लाइक 2 or 3 years or 1 or 2 years and then I would jump into this PhD thing. मुझे करना है obviously क्योंकि मुझे एकेडमिक्स में जाना है, पर एक रियल लाइफ कॉर्पोरेट एग्जाम वो एक एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आई थिंक बहुत ही अच्छी अप्रोच है अंबुज, बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ चॉइसेस यू आर गोइंग टू मेक, इट्स गोइंग टू बेस्ड ऑन योर प्रायोरिटीज, ठीक है। बट आइडिया क्या है कि अप्रोच सही होनी चाहिए। तो आपकी ये जो अप्रोच है कि पहले मैं प्रैक्टिकल कुछ इन हैंड एक्सपीरियंस ले लूं, आपने कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस ऑलरेडी ले लिया है, बैंक का एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। बैंक के एक्सपीरियंस के बाद अगर आप जाएंगे अच्छे इंस्टीट्यूट में, जैसे आपने कहा आईएम्स, अभी कुछ टाइम पहले हमने सुकृति मैम का इंटरव्यू किया था, शी वाज आल्सो टेलिंग दैट कि वहां पे हर डाइवर्सिटी के स्टूडेंट्स मिलते हैं, बहुत, ठीक है, डॉक्टर्स मिलते हैं, इंजीनियर्स मिलते हैं, कॉमर्स वाले मिलते हैं, वर्क एक्स वाले मिलते हैं, 8-8 10-10 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद लोग आते हैं पीएचडी करने के। सो आई थिंक ये सारी चीजें जो आपको लर्निंग प्रोवाइड करेंगी, that is going to be very helpful in your growth and your career ahead in academics. So I think very well put up, Ambuj. And now we bring to the last question. We are coming to the last question now. What is going to be your suggestion, Ambuj, to all the future aspirants? किस तरीके से उनको तैयारी करनी चाहिए, क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? बिकॉज ऐसा है कि मैं कितना भी बोल लूं, जब कोई स्टूडेंट बोलता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार हम इससे रिलेट कर पा रहे हैं। तो आई थिंक शायद वो आपकी बात माने, तो प्लीज आप अपने कुछ सजेशंस, कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स दे दीजिए हमारे स्टूडेंट्स को। सो हमेशा तो आपने सब बता ही दिया है, पर मतलब एज अ स्टूडेंट मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डिसिप्लिन, लाइफ में डिसिप्लिन। अगर आपके लाइफ में डिसिप्लिन आ गया, आपने सोने उठने का टाइम फिक्स कर लिया, आप थोड़े से एक्सरसाइजेस कर रहे हो, आपका दिमाग बहुत, अब जब दिमाग में थोड़ा खून जाता है तो आपको बहुत चीजें क्लैरिटी में समझ में आती हैं। तो एक वो है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कंसिस्टेंसी। अगर आपने बोला है कि मुझे 2 घंटे ही पढ़ने, मतलब मैंने थ्रू आउट माई एमबीए मैंने बहुत पढ़ाई नहीं की गोल्ड मेडल के लिए, मैंने हर दिन 1-1.25 घंटे या 2 घंटे ही पढ़ाई की, पर मैंने वो कंसिस्टेंटली की, मैंने हर चीज की, मैंने मतलब घूमने गया, हर चीज किया मैंने, पर मैंने 2 घंटे की जो पढ़ाई थी मैंने हर दिन आई मेड श्योर कि मैं ये कर रहा हूँ। तो कंसिस्टेंटली वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको करना है, मुझे किसी एट एनी कॉस्ट एनी हाउ मुझे ये 2 घंटे पढ़ाई करनी है, बस कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन, यू आर थ्रू। आई थिंक मुझे कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही हैज सेड इट ब्यूटीफुली कि हमारे दिमाग में हमेशा ये परसेप्शन होता है कि यार जो टॉपर्स है ना वो 15-15 घंटे पढ़ते हैं। जैसे आई हैड आल्सो बीन द टॉपर ऑफ माय ग्रेजुएशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो मुझसे भी स्टूडेंट्स यही पूछते हैं कि सर क्या आप 14-15 घंटे पढ़ते थे? भाई दैट्स नॉट पॉसिबल। फर्स्ट गेट टू द फैक्ट कि वो पॉसिबल नहीं है, और कोई बोल रहा है तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो सच में जीनियस।
बट अगर आप कंसिस्टेंटली 2 घंटे 4 घंटे जो भी आपने टाइम बनाया अपने कैलिबर के हिसाब से, अपने एफर्ट्स के हिसाब से, जो भी आप टारगेट रखते हैं, आई थिंक अगर उसको आप सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू रीच माइलस्टोन्स, यू आर गोइंग टू रीच प्लेसेस. सो थैंक यू सो मच अंबुज फॉर जॉइनिंग अस एंड शेयरिंग योर वंडरफुल इनसाइट्स. इट्स बीन लवली टॉकिंग टू यू. और कहीं भी आपको लगता है अंबुज, बिकॉज आई ऑलवेज लव बीइंग एसोसिएटेड विद माय पास्ट ईयर स्टूडेंट्स, तो कहीं भी आपको लगता है पीएचडी में यू नीड एनी हेल्प ऑफ माय, प्लीज फील फ्री टू गेट इन टच विद मी. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी एंड कांग्रेचुलेशंस. My pleasure. Thank you. Thank you dear. Thank you.